Hello everyone, my name is Praveen Agarwal. I am a soft skill expert. Moreover, I have got a pretty good experience in consultancies. I was a part of recruitment world for a long time and I'm a part of Access Colleges. And I have got expertise in this particular field. So today I have got 3 students. They are from BTech and they are BTech final year and they are planning to be a part of corporate world. अब जॉब के लिए तलाश करनी इनके साथ में बहुत सारी क्वेरीज होती हैं, तो वो हम लोगों ने क्या डिसाइड किया कि एक टेक्निकल एक्सपर्ट होता है, एक एचआर एक्सपर्ट होता है जो स्टूडेंट्स की क्वेरीज को सॉल्व करने की कोशिश करेंगे। उनके पास बहुत सारे क्वेश्चंस होते हैं, सर हम लोग यूपी बोर्ड से हैं, सर हम लोग इस फील्ड से नहीं हैं, सर कॉन्फिडेंस कैसे डेवलप हो सकता है, सर पब्लिक स्पीकिंग कैसे इन्हांस कर सकते हैं। तो इससे रिलेटेड काफ़ी सारी क्वेरी होती है, तो हम लोग उसको सॉल्व करने की कोशिश करेंगे और टेक्निकल एक्सपर्ट हमारी मैम हैं, वो टेक्निकल रिलेटेड क्वेश्चन काफ़ी सारे सॉल्व करेंगे। तो मैम अब आपसे बात करेंगे। Hello everyone. My name is Sabia Fatima, working as an assistant professor in Access Colleges, Kanpur. I teach C programming, data structure, algorithm and data analytics subject in information technology. So यहाँ पर हमारे IT थर्ड ईयर के स्टूडेंट हैं जिनके पास प्लेसमेंट से रिगार्डिंग टेक्निकल क्वेश्चंस भी हैं जिन्हें मैं सॉल्व करने के लिए यहाँ पर आई हूँ और हमारे साथ कुछ स्टूडेंट हैं। Hi everyone, my name is Anushka Tripathi. I am the student of Access Institute of Technology and Management, pursuing BTech from in Information Technology, and I am the student of third year. Hello, myself Piyush Sharwani. I am pursuing BTech IT third year from Access Institute of Technology and Management. Sorry to interrupt. You started your introduction with myself, Piyush. The very first lesson for all viewers: never start your introduction with myself. Whenever you plan to commit professional suicide, whenever you plan you don't want to get selected, you start your introduction with myself. There are 2 reasons. The very first reason, myself is a reflexive pronoun that cannot be used as a subject. That is absolutely wrong. Grammatically, it is absolutely wrong. Second, it shows proud. If you are a personality, if you have attained and achieved a number of things in your life and you've got proud of those things, अगर तब बोलते हो myself, it can be somehow digested, but you should not use myself at all. So the very first lesson for you viewers, never start introduction with myself. So I hope you wouldn't have minded, Piyush. You would have enjoyed it. Thank you. Yes. Hello everyone, my name is Omkar Singh and I am also a student of BTech IT third year in Access Institute of Technology and Management. आज हम डिस्कस करेंगे हमारे जो प्रॉब्लम्स आती हैं स्टूडेंट लाइफ में और इन कंपनी से रिलेटेड प्रॉब्लम्स को आज हम फेस करेंगे तो टेक्निकल एक्सपर्ट्स के साथ। So come on students, let's start. You have got 2 experts today. Yes. One HR expert, soft skill expert. Second, we have got technical expert. So if you've got any query, not your query, but you can ask the query that are being faced by some of your batchmates, some of your classmates. So we'll try to resolve your queries today. So who's going to start first? Sir, I would like to start first. My first of all question is, as a programmer in the IT industry, what is the basic programming language from how we should create a logic in programming? देखिए, सबसे पहले आपका क्वेश्चन ये है कि हम लोग प्रोग्रामिंग के लॉजिक को कैसे क्रिएट करें, yes, आप ये पूछना चाहते हो। yes, तो देखिए, सबसे पहले हमें प्रोग्रामिंग अगर सीखनी है तो हमें प्रोग्रामिंग लिखना नहीं सीखना होगा, बल्कि हमें क्या सीखना होगा कि हमें किस तरह से लॉजिक को क्रिएट करें, मतलब सोचना सीखना है, लिखना सीखना नहीं है। हमारा जो बेसिक एम है वो क्या है कि प्रोग्रामिंग सोची कैसे जाती है, हमारे प्रोग्रामिंग का लॉजिक क्या है। फॉर एग्जांपल अगर हमें 2 नंबर का अगर हमें इवन नंबर फाइंड आउट करना हुआ तो कोई नंबर कैसे इवन होगा। अगर हमें एक प्रोग्राम बनाना है कि इवन नंबर whether we have to write a program in C, yes, that how to find the number that is even, तो लॉजिक हमारे माइंड में आता है कि अगर कोई नंबर 2 से डिविजिबल होगा, 2 से डिविजिबल होगा तो वो क्या होगा, वो नंबर होगा इवन नंबर। सो एक लॉजिक क्रिएट हो गया कि लॉजिक क्या हो जाएगा कि इफ नंबर मॉड्यूलस 2 इज इक्वल टू 0 देन इट विल बी इवन नंबर। सो यही हम लोगों को सोचना होता है। सो मैम, अभी क्या हो रहा है कि स्कूल के जो स्टूडेंट्स होते हैं वो स्टार्टिंग वैसे भी अभी प्रमोट हो गए हैं, तो इतना उन लोग को कहते हैं ना सोचने का भी जैसे टाइम तो मिला है, लेकिन इतना किसी ने सोचा ही नहीं है इस बार क्योंकि लॉकडाउन था कि क्या कौन सी स्ट्रीम चूज़ करनी चाहिए। बीटेक में सपोज अगर वो लोग सोच रहे हैं कि हाँ बीटेक हम लोग को परस्यू करना चाहिए तो कौन सी स्ट्रीम चूज़ करनी चाहिए। आईटी सीएस में तो सबसे ज़्यादा कन्फ्यूजन होती है, तो मैम आईटी और सीएस में बेसिक डिफरेंस क्या है? देखिए, CS इज बेस्ड ऑन प्रोग्रामिंग
हम आईटी में भी प्रोग्रामिंग पढ़ते हैं, हम लोग सीएस में भी प्रोग्रामिंग पढ़ते हैं। बट सीएस में क्या होता है कि हमारा फोकस होता है प्रोग्रामिंग पे, कि हमें सॉफ्टवेयर डेवलपर बनना है या हमें प्रोग्रामर बनना है। बट आईटी में क्या डिफरेंस होता है, आईटी में भी हम सेम सब्जेक्ट ही पढ़ते हैं, हम लोग एल्गोरिथम भी पढ़ते हैं, हम लोग डेटा स्ट्रक्चर भी पढ़ते हैं एंड प्रोग्रामिंग भी पढ़ते हैं। बट आईटी में क्या होता है, हमारा मेन फोकस होता है सॉफ्टवेयर टेस्टिंग पे, सॉफ्टवेयर नेटवर्क एनालिस्ट पे। तो हम हमारे सीएस और आईटी पढ़ते तो हम लोग सारे सब्जेक्ट सेम है, बट हमारी जो जॉब डोमेन है वो डिफरेंट होती हैं। तो आईटी किसी भी तरह से कंप्यूटर साइंस से कम नहीं है आज के दौर में। नेक्स्ट क्वेश्चन किसकी साइड से आ रहा है? सर मैं आपसे कुछ पूछना चाहूँगा। पूछिए सर पूछिए। जैसे कि बहुत से स्टूडेंट आते हैं जो सीबीएसई बोर्ड से भी होते हैं, यूपी बोर्ड से भी होते हैं। तो सर यूपी बोर्ड वालों को ज़्यादा प्रॉब्लम फेस करनी होती है, तो सर उनके लिए आप क्या सजेशन देंगे? देखो, पहला तो मेरा एक सिंपल सजेशन है, ना ही यूपी बोर्ड को बोलूँगा, ना सीबीएसई को बोलूँगा, ना आईसी बोर्ड को बोलूँगा। सबसे बड़ा प्रॉब्लम होता है जब भी हम कुछ ज़िंदगी में नहीं करना चाहते हैं, सो वी हैव गॉट अ वेरी सिंपल रीज़न, वी बिलोंग टू दिस पर्टिकुलर बोर्ड, वी बिलोंग टू दिस पर्टिकुलर फैमिली, वी हैव गॉट दिस प्रॉब्लम, दैट्स व्हाई वी डोंट वांट टू डू इट। बट अगर मैं आपसे बात करूँ, मैं आपको बहुत सारे ऐसे स्टूडेंट्स दिखा सकता हूँ मेरे, जो हार्डकोर यूपी बैकग्राउंड से थे, यूपी बोर्ड बैकग्राउंड से रहे हैं और इस समय ट्रेनर हैं, वाइस प्रेसिडेंट हैं कंपनीज में, सीनियर पोस्ट पे बैठे हुए हैं। सो नीड टू वर्क हार्ड। अगर आपको प्रॉपर गाइडेंस मिले, कोई बताने वाला प्रॉपर मिले, तो चीज़ें उतनी डिफिकल्ट नहीं होती। यूपी बोर्ड में जैसे मैंने देखा है, स्टूडेंट की सबसे बड़ी प्रॉब्लम होती है ट्रांसलेशन की प्रॉब्लम होती है। उनको ग्रामर पढ़ा रही, इस चीज़ से अग्री करोगे, उनको ग्रामर पढ़ा देती है हिंदी मेथड से, उनको ग्रामर बहुत पढ़ाई जाती है। ठीक है, आपको क्या करना है? हाँ, कुछ क्वेश्चन पूछें। फ्लुएंट नहीं होता है, फ्लुएंट नहीं होते। हाँ, इंग्लिश में बोलते उसके कई रीजंस होते हैं कि वो हर चीज़ ट्रांसलेट करने बोलने की कोशिश करते हैं। हमने क्या किया है, बहुत प्रैक्टिकल एस्पेक्ट को कवर किया है। We cover very limited portion of grammar. The moment I say limited portion of grammar, we hardly use 10 to 15% part of grammar while speaking up. If you want to speak up English like your mother tongue, you hardly need to use 10 to 15% part of grammar. इसके अलावा आपको अटेंशन पे करनी होती है प्रोनाउंसिएशन पे, आपको अटेंशन पे करनी होती है फ्लुएंसी पे, आइडिया जनरेशन पे। वो नहीं हो पाता है क्योंकि जब तक ट्रांसलेशन करते रहोगे पॉसिबल नहीं होता है। सर हम लोग स्ट्रक्चर्ड फॉर्म में सोचते हैं हमेशा। हम जो सोचते हैं कि हम लोग एक स्ट्रक्चर बना देते हैं कि उसी मेथड से बस बोलना है, रट्टाफिकेशन लोग करते हैं। जब हम लोग यूपी बोर्ड से, मैंने भी फेस करा, बहुत सारी ऐसे ही चीज़ें चल रही हैं कि हम लोग रट्टाफिकेशन करते हैं। कुछ भी अगर मैं सेंटेंस मांगना तो उससे पहले हम लोग सोच लेते हैं कि अब ये लाइन में खुलनी है। तो उसके लिए भी हमने कुछ चीज़ें सॉर्ट आउट करी हैं। जैसे मैंने तो कई सारी मूवीज़ देखी हैं इंग्लिश में, बहुत सारी चीज़ें सेशंस कर देखे हैं, तो उससे मेरी सेंटेंस फॉर्मेशन पे मैंने अपना आपको फोकस करा। तो सेंटेंस फॉर्मेशन में मैंने उस चीज़ को अपना रेक्टिफाई करा। ये बहुत अच्छी चीज़ है, हम लोग इस पर वर्क भी करते हैं। बेसिकली आपको क्या करना है, यू नीड टू बिकम अ स्पॉन्टेनियस स्पीकर एंड नेचुरल स्पीकर। अभी कुछ सालों पहले तक ऐसा होता था कॉर्पोरेट वर्ल्ड में कि भाई कुछ क्वेश्चन रट के चले जाओ, उसके आंसर दे दो। अब नहीं होता है। दे वांट यू टू नॉट परफेक्ट बट नॉट लेस देन परफेक्ट। तो आपको स्पॉन्टेनियस होना पड़ेगा। तो आपकी अप्रोच बहुत अच्छी है। आप क्या कर सकते हो, एक हैबिट डेवलप करो मैगजीन पढ़ने की, आप हैबिट डेवलप करो न्यूज़पेपर पढ़ने की, आप हैबिट डेवलप करो नॉवल पढ़ने की। अच्छा, एक चीज़ और कर सकते हो, आप लोग चैट शोज जरूर देखा करो। जब चैट शोज देखोगे तो एक अंदर का डर है आपके अंदर का डर होता है कि अरे वी नीड टू बी परफेक्ट इन ग्रामर। नहीं, पता चलेगा यार वी हैव टू यूज वेरी लिमिटेड पोर्शन ऑफ ग्रामर बट वी हैव टू वर्क ऑन आवर आइडिया जनरेशन। तो इस पर बहुत वर्क करो, बहुत हेल्प करेगा आपकी। और कोई क्वेश्चन आपके पूछे चलो। हाँ सर, एक्सेंट का होता है ना, जैसे एक्सेंट अब लोग ट्राई करते हैं कि हाँ चलो अमेरिकन एक्सेंट कॉपी करने की बहुत कोशिश करते हैं। Yes. अपना नेचुरल नहीं आता है कि हाँ चलो अमेरिकन एक्सेंट अगर वो कंफर्टेबल बोल रहे हैं तो फिर गड़बड़ हो जाती है कि अब दूसरे का अगर कॉपी करके बोलेंगे तो। पहला तो ये मिसकॉन्सेप्शन है। There is no company that is asking for accent. They are simply asking for neutral accent. Correct. And the moment you say neutral accent means English should be spoken as English. Suppose if I belong to South Indian family, if I speak up English like this, I don't know what to talk to you. So I'm not speaking English. I'm speaking a South Indian language. So what they want you to speak up English naturally. Do not commit pronunciation mistakes. Suppose if I say siege coming, it is not English. It cannot be understood by a native speaker. So don't need to follow American accent, don't need to follow British accent. If you follow, they are going to check you out. That's for sure. न्यूट्रल एक्सेंट बोला, न्यूट्रल एक्सेंट में 3-4 चीज़ों पे काम करना है, प्रोनाउंसिएशन वर्क करना है। जैसे अभी आपने एक वर्ड यूज़ किया था टेक्नोलॉजी, तो टेक्नोलॉजी नहीं, वो टेक्नोलॉजी है, तो टेक्नोलॉजी कर दो उसको। सो इट वोंट टेक दैट मच टाइम। और अच्छा, मैं ये भी नहीं कह रहा कि लैंग्वेज में आपको परफेक्ट होना है। वो हर चीज़ में आपको ट्रेनिंग देते हैं। इतने चाहते हैं कि ट्रेनेबल हो जाओ। दे डोंट वांट एन इंग्लिश मैन और एन इंग्लिश वुमन, दे वांट यू टू बी परफेक्ट विद द लैंग्वेज, क्योंकि इंटरनेशनल क्लाइंट होते हैं, इंटरैक्ट करना होता है। बस इतना वो चाहते हैं। और इसमें थोड़ी सी मेहनत करोगे
और वर्क करोगे तो चीज़ें पॉसिबल है, जैसे जो इसने बताया वो भी चीज़ें पॉसिबल है। और मैम टेक्निकल जैसे होते हैं ना, टेक्निकल अभी तो जैसे ऑनलाइन क्लासेस चल रही हैं तो उस टाइम तो टेक्निकल प्रोग्रामिंग होता है, जो प्रैक्टिकल सेशंस होते हैं वो उतने अच्छे उतने इंटरेक्टिव नहीं हो सकते हैं क्योंकि वीडियो की भी कमी रहती है, कभी कभी ऑडियो ब्रेक होता रहता है, कुछ प्रॉब्लम्स आती हैं। तो मैम उसके लिए फिर टेक्निकल के लिए क्या काम करें हम लोग? देखिए, अगर ऐसी बात है तो हम लोग ऑफलाइन में क्या होता है, हम लोग पूरा दिन इंगेज रहते हैं, ऑफलाइन में हम लोग 9 to 5 इंगेज रहते हैं। हमारी प्रॉब्लम कुछ प्रॉब्लम्स होती है, ऐसा नहीं है कि हर चीज़ के पीछे एक एडवांटेज और डिसएडवांटेज होते हैं, बट ऑनलाइन में अगर हम लोग इस तरह से फेस कर रहे हैं कोई प्रॉब्लम तो उसके साथ साथ बहुत सारे एडवांटेजेस भी हैं कि हम लोग ऑफलाइन में 9 to 5 इंगेज रह रहे हैं, बट ऑनलाइन में हमारा एंगेजमेंट है, बट हम अपने लिए टाइम निकाल पा रहे हैं, हम पूरा दिन घर पे हैं और यहाँ पे ट्रैवलिंग का टाइम भी हमारा बच रहा है। साथ ही साथ हम क्या कर सकते हैं कि हम लोग बहुत सारे कोर्सेज हैं तो उन कोर्सेज को भी अवेल कर सकते हैं। अगर हमें हमारे कॉलेज से वो इन्फॉर्मेशन हो सकता है ना मिल रही हो तो वो इन्फॉर्मेशन हमें कहीं और से किसी एडिशनल कोर्सेज से मिलेगी, यानी हम अपने कॉलेज में तो पढ़ ही रहे हैं, हम अपने कॉलेज में वो सब्जेक्ट्स पढ़ रहे हैं, अपने डोमेन पे कमांड बना रहे हैं, बट एडिशनल थिंग जो हमारे प्लेसमेंट के लिए ज़रूरी हैं, एडिशनल कोर्सेज जो हमारे प्लेसमेंट के लिए ज़रूरी है वो भी हम ऑनलाइन कोर्सेज कर सकते हैं। मैम आई वुड लाइक टू क्वेश्चन टू मैम, जैसे कि हम लोग को कई सारे डोमेन्स हैं हम लोग की, तो उसमें अगर जैसे प्रोग्रामिंग जरूरी नहीं कि हम लोग को आनी ही चाहिए, तो उसके अलावा और कौन कौन से डोमेन्स हो सकती हैं मैम इसमें? देखिए, अगर किसी कोई ऐसा पर्सन है जिसको प्रोग्रामिंग लैंग्वेज पे बहुत ज़्यादा कमांड नहीं है तो ज़रूरी नहीं है कि आप आईटी से हो तो आपको प्रोग्रामिंग लैंग्वेज आनी ही चाहिए। आप पढ़ रहे हो, आपको आना चाहिए, बहुत अच्छी बात है, मगर उसके साथ अगर किसी को वाकई प्रॉब्लम है तो वो क्या कर सकता है कि हम क्लाउड कंप्यूटिंग अभी ट्रेंड में है, न्यू टेक्नोलॉजी, अपकमिंग टेक्नोलॉजी है, जैसे डेटा एनालिस्ट है, डेटा साइंस है, और हम इन सारे डोमेन पे भी जा सकते हैं जो इमर्जिंग टेक्नोलॉजीज़ हैं, जिनमें कि जैसे कि हम आईटी बीइंग आईटीएन हम क्या कर सकते हैं, हम सिस्टम आईटी एडमिनिस्ट्रेशन में भी जा सकते हैं और डेटा एनालिस्ट भी बन सकते हैं। तो अगर प्रोग्रामर नहीं बन पा रहे हैं क्योंकि हमारी प्रोग्रामिंग लैंग्वेज बहुत ज़्यादा अच्छी नहीं है, वीक है, तो हम डिफरेंट डोमेन्स में भी जा सकते हैं। ये इमर्जिंग टेक्नोलॉजी है जिसमें हमारा बहुत ब्राइट फ्यूचर है। एक चीज़ मैं आपसे कहना चाहूँगा, ऑलवेज रिमेंबर वन थिंग, ये पेंडेमिक के बाद में अगर आप इग्नोरेंट हो, अगर आप इनोसेंट हैं, you cannot make your career. Every company needs smart people. Yes, so टाइम था जब ignorant हो और innocent हो, that was a quality, that used to be a quality, but now it won't happen. तो ये चीज़ें बहुत करनी पड़ेंगी। नेक्स्ट चीज़ होती है जो मैंने इस कॉलेज को ज्वाइन किया, मैंने देखा है हम लोग केवल ऑफलाइन क्लासेस में जो थे ऑनलाइन क्लासेस में हम आउट ऑफ द ट्रैक भी पढ़ा रहे हैं। हम आपसे नहीं कह रहे भाई हमसे क्वेश्चन पूछो तो 9 to 5 भी आप क्वेश्चन पूछ सकते हो। हमारी जितनी अब हम लोग जॉब आवर्स हो गए 24 आवर्स, आप फैकल्टी मेंबर्स आप अपनी क्वेरी सॉल्व करो, पूछो। और कुछ नहीं करने के वही रीज़न है, बहुत सारी रीज़न है, नहीं करना चाहते बहुत रीज़न है, करने को बहुत कुछ हमारे पास। सर मैं आपसे क्वेश्चन करना चाहता हूँ, जैसे कि फ्रेशर्स पहली बार इंटरव्यू देता है तो वो बहुत से मतलब अपनी इंग्लिश नहीं बोल पाता वहाँ पर, तो उसके लिए क्या सजेशन है सर? देखो, पहले एक चीज़ आपको समझनी पड़ेगी, इंटरव्यू में 2 टाइप के क्वेश्चंस होते हैं। एक एक्सपेक्टेड क्वेश्चन है, वो क्वेश्चन आपसे पूछे जाएंगे। इफ़ यू कमिट ईदर अ ब्लंडर और अ मिस्टेक बाय आंसरिंग दीज क्वेश्चन और दोज क्वेश्चन, सो प्रॉब्लम खड़ी होनी है। जैसे आपको इंट्रोडक्शन है वो आपको प्रिपेयर करना है, आपकी टेक्निकल प्रोफाइल से रिलेटेड क्वेश्चन है वो प्रिपेयर करने हैं, फैमिली बैकग्राउंड प्रिपेयर करना है, होम सिटी प्रिपेयर करना है। स्पॉन्टेनियस क्वेश्चन जो पूछे जाएंगे उसको कैसे हैंडल करना है। देखो, क्वेश्चन मेरे पास आज की डेट में भी कंडीशन ऐसे है, रिक्रूटमेंट का मेरा बहुत अच्छा एक्सपीरियंस है, मैं आपको 20 क्वेश्चन दे दूँगा, 20 क्वेश्चन आप मगअप को आंसर दे दो, बट वो चीज़ें नहीं माने रखती हैं। आपको कोई बात आती है, इग्नोरेंट नहीं होना है, इनोसेंट नहीं होना है, और थोड़ी सी चीज़ जो आपके बैचमेट ने बताई उसको डेवलप करो। आप मूवीज़ देखो, आप न्यूज़पेपर पढ़ो, आप नॉवल पढ़ो। होता ना कई बार कि हमारा बैकग्राउंड नहीं हम क्यों करें, लेकिन अगर आपने एक बुक पढ़ी होगी रिच डैड और पुअर डैड, और थोड़ा सा फाइनेंशियल बन जाओ, मॉनेटरी बेनिफिट्स के बारे में सोचो, तो मोटिवेशन आने लगेगा। अभी ऐसी कई सारी चीज़ें होंगी जो नहीं कर पाते हो क्योंकि पापा आपके खर्चों को पूरा कर सकते हैं, पापा आपको अय्याशी नहीं करा सकते, है ना। दैट्स द श्योरिटी। तो अगर अपने आप को मोटिवेट करना है तो वो सारी चीज़ें बहुत अच्छी से हो जाएंगी। तो इन चीज़ों पे इन्वॉल्व हो, बाकी हम लोग यहाँ बैठे हैं वो सारी चीज़ को हेल्प करने के लिए। और क्वेश्चन पूछते चलो मेरे से। यस सर वो बैक पेपर का जैसे होता है ना, लोगों के वो मार्कशीट पे अगर असर पड़ता है बैक के, ऑब्वियसली वो परसेंटेज पे बहुत ज़्यादा एफर्ट वो डालता है, इफेक्ट करता है।
तो सर उसके लिए, क्योंकि कॉन्फिडेंस डाउन हो जाता है ऑब्वियसली स्टूडेंट का, तो सर उसके लिए फिर क्या? देखो, मैं इसको इनकरेज तो नहीं करूंगा कि बैक पेपर लाओ, बैक लाओ, इसके बाद प्लेसमेंट हो, ये अच्छी चीज़ नहीं है। ट्राई योर बेस्ट, पढ़ते रहो। और दूसरी चीज़ ये है कि जो कंपनी है प्लेसमेंट के लिए वो परसेंटेज पे बहुत ज़्यादा फोकस नहीं करती, अपने स्किल्स पे फोकस करती है। सर भी मेरे से एग्री होंगे। सर देखो, ये बात सही है, आपने भी देखा होगा, कई आईएएस के इंटरव्यूज देखे होंगे। yes, उनके 33% मार्क्स हैं, 40% मार्क्स हैं, दे टर्न इनटू एन आईएएस ऑफिसर, और पता चला कि जिसके 90% है वो स्ट्रगल कर रहा है। अच्छा, कंपनीज के साथ में आज के टाइम में सबसे अच्छी चीज़ क्या होगी, हम आपकी स्किल्स को देख रहे हैं, मार्कशीट में कैसे देख रहे हो कोई मतलब नहीं है। अभी मेरे कुछ स्टूडेंट थे, दे आर फ्रॉम आईआईटी, तो पता चला एक स्टूडेंट है, उसके मार्कशीट में बहुत अच्छे मार्क्स थे, बहुत अच्छा लग रहा था, एक थोड़ा सा कम अच्छा लग रहा था, जो कम अच्छा लग रहा था उससे डबल पैकेज ऑफर हो गया। कैसे ऑफर हो गया? ही वाज एबल टू सेल हिमसेल्फ आउट, स्किल्स अच्छी थी, अपने आप को सेल आउट कर पाया, लॉजिक दे पाया, भाई बैक क्यों आई बैक, कोई रीजन होगा। ठीक है, लाइफ में कुछ गलती करते थे, इसका मतलब ही नहीं कि लाइफ में गलती करते तो सुधार ही नहीं कर सकते। परसेंटेज, अगर परसेंटेज पे ले रही हो कंपनी तो भाई जिसके सबसे टॉप हो सबको हायर कर ले, इंटरव्यू प्रोसेस ही क्यों रखें? तो ये तो नहीं है। तो बैक पे मैं इंकरेज नहीं कर रहा हूँ कि आगे आप लोग बैचमेट सिर्फ बैक लाते हैं, प्लेस हो जाएंगे, लेकिन इसके से बहुत आपको क्या करना है, आपको अपने आप को अपग्रेड करते चलना है। जैसे कि हमारे कॉलेज का टाई अप है सिस्को से, पालो आल्टो एकेडमी से, ओरेकल से, तो ये भी अपने अपने कोर्सेज प्रोवाइड करते हैं। तो आप लोगों को क्या करना है, इनको अवेल करना है, इनके कोर्सेज को अवेल करना है, अपने आप को अपग्रेड करना है, जिसके थ्रू आप प्लेस हो सकते हो इन फ्यूचर अच्छी कंपनी में। Yes ma'am, we are engaged to all that courses. So like मैम SQL है और अदर कोर्सेज जो हैं ऑफर करे गए कॉलेज, हम लोग उसको रिसेंटली पूरा फॉलो कर रहे हैं, ऐसा कि वो हम लोग के जॉब इंटरव्यू में बहुत हेल्प कर रहे हैं। और कोई क्वेश्चन? सर मेरे एक दिमाग में क्वेश्चन उठ रहा है। बिल्कुल बिल्कुल पूछो। सर जैसे कि फ्रेशर होते हैं तो उन्हें तो कुछ आइडिया होता नहीं है कि कैसे इंटरव्यू लेना है, तो वो रट चले जाते हैं, मतलब कि इंट्रोडक्शन रट लिया, वहाँ पे बोल देंगे तो हो जाएगा हमारा सिलेक्शन। तो उसके लिए आप कैसे सजेस्ट करेंगे? देखो, सबसे पहले मैं चीज़ फ्रेशर के लिए चीज़ बोलना चाहूँगा जो शायद आप लोगों ने उसे नहीं पूछा है, लेकिन मैंने फ्रेशर के माइंड में एक चीज़ देखी है कि दे कीप ऑन सेइंग सर वी आर नॉट एक्सपीरियंस, कंपनी हमें क्यों हायर करेगी भाई, हमें तो एक्सपीरियंस नहीं है। ठीक है, हम लोग बड़े बड़े शहरों से नहीं हैं, जैसे आपने बोला कि सर हम लोग अभी इंग्लिश नहीं बोल पा रहे हैं, ठीक है, बड़े बड़े शहरों से नहीं हैं। कॉर्पोरेट वर्ल्ड के लिए हमेशा एक चीज़ याद रखना कि उनको लॉन्ग टर्म कनेक्टिविटी चाहिए उनके साथ में। जैसे मैं सपोज एक्सेस कॉलेज से जुड़ा हुआ हूँ, अभी मैं कॉलेज के साथ में जितने टाइम तक रहूँगा वो मैं एसेट होता हूँ कॉलेज की। ठीक है, कॉलेज नहीं चाहेगा कि एक एम्प्लॉय को ऐसे हटा दे, नहीं चाहेगा। ऐसे ही कॉलेज क्या चाहेगा मेरे से, लॉन्ग टर्म कमिटमेंट चाहेगा। ऐसे ही जिस कंपनी में आप जा रहे हो तो क्या चाहेगा, आपसे लॉन्ग टर्म कमिटमेंट चाहेगा। तो जब फ्रेशर होते हो तो सबसे पहली चीज़ सीखो, लैंग्वेज वाली बात तो लोग डिस्कस करेंगे। जब भी कहते हैं ना सर इंटरव्यू में हम क्या बोले, सर फ्रेशर हम क्या बात करें, हमारे पास कुछ बताने के लिए ही नहीं। आप इंटर्नशिप करिए, इसको सेल आउट करो। ठीक है, आपकी स्ट्रेंथ उसको सेल आउट करो, वीकनेस भी ऐसी हो जो आपकी कॉर्पोरेट लाइफ में कोई प्रॉब्लम क्रिएट ना करे, उस पर हम लोग काफ़ी चर्चा करेंगे बाद में। तो ऐसी वीकनेस हो जो कॉर्पोरेट लाइफ में प्रॉब्लम ना क्रिएट करे, और अपना क्या दिखाओ, लर्निंग एटीट्यूड दिखाओ। जैसे भी आपने पूछा था सर हम लोग बैक आ जाती है, तो हमेशा ध्यान रखना जो भी आपकी टेक्निकल नॉलेज है वो इट्स वेरी प्रेशियस, बट दे आर गोइंग टू ट्रेन यू, और आप बहुत पैसा खर्च कर रहे हैं ट्रेनिंग पे। तो आप क्या सेल आउट कर सकते हो उनको अपने, आप स्टेबिलिटी सेल आउट कर सकते हो। क्योंकि कई बार ऐसे बड़े बड़े शहरों में होता है, द एस्पायरेंट्स बिलोंग टू वेरी अफ्लुएंट फैमिली। सपोज अगर मैं अफ्लुएंट फैमिली से हूँ, मैं मर्सिडीज से आ रहा हूँ, मुझे कोई 50,000 रुपये ऑफर करेगा तो मैं नहीं टिकूंगा कंपनी में। ठीक है, तो आपको क्या करना, अपनी स्टेबिलिटी को सेल आउट करो। ठीक है, अपने लर्निंग एटीट्यूड को सेल आउट करो, अपने लॉन्ग टर्म कमिटमेंट को सेल आउट करो। भैया मैं कंपनी में बहुत लॉन्ग टर्म तक टिकूंगा और कंपनी के सेट होऊंगा। इसके अलावा स्किल डेवलप करने के लिए वही मैंने बोला, किसी भी चीज़ को जब कॉन्फिडेंस जैसे कहते हो, कॉन्फिडेंस क्या होता है, क्या पिक्चर है कॉन्फिडेंस की, बताओ आपके दिमाग में क्या पिक्चर है? कॉन्फिडेंस के लिए ये पिक्चर है कि हमें अपना फुल ऑफ एटीट्यूड होना चाहिए, अपग्रेड करते रहना चाहिए, जो सबसे नेसेसरी चीज़ है हम लोग के लिए कि अपग्रेडेशन हमेशा रहना चाहिए, फ्लुएंट है। देखो, कॉन्फिडेंस दो चीज़ों से आता है, एक आपकी नॉलेज से आता है, एक किसी चीज़ की हैबिट होती है उससे आता है। सपोज इंग्लिश में बहुत कॉन्फिडेंट साउंड कर रहा हूँ क्योंकि इंग्लिश मेरा सब्जेक्ट है, कोर सब्जेक्ट है, बहुत सालों से कमांड कर रखी है। अब मैं मैम के सब्जेक्ट में बोलना शुरू कर दूंगा, सो आई स्टार्ट स्टैमरिंग, इट विल हैपन और नॉट, क्योंकि मेरा कॉन्फिडेंस क्या होगा, जीरो हो जाएगा। तो पहला नॉलेज हो गई, दूसरा हैबिट हो गई। तो ऐसे ही आपको करना है, आपको क्या करना है, एक नॉलेज डेवलप करनी है, उस फील्ड पे एक हैबिट डेवलप करनी है। और सबसे पहली चीज़ होती है प्रोक्रास्टिनेशन होती है, हमको ये नहीं करना है। फ्यूचर में रिजल्ट के बारे में ज़रूर सोचो कि भैया मैं अगर अपग्रेड हो जाऊंगा तो ये कंपनीज है, यहाँ पे पहुँच सकता हूँ। और मैं आपको ऐसे सैकड़ों एग्जाम्पल दिखा सकता हूँ जो आपके कानपुर शहर से हैं, छोटे छोटे शहरों से हैं, शुक्लागंज से हैं, छोटी छोटी गलियों से हैं, ठीक है, ऋषिनगर से हैं। वो आज ट्रेनर की और कंट्री हेड की पोजीशन में बैठे हुए। एक टाइम पर उनमें साशा की प्रॉब्लम थी, बट वो वेरी हार्ड वर्किंग। तो आज कितने लाख का पैकेज ले रहे हैं क्योंकि उनके साथ में ये था। आपके साथ भी हो सकता है।
ठीक है। सर जैसे आपने बोला कि स्टैमरिंग एक प्रॉब्लम होती है, मतलब किसी को भी हो सकती है, तो बहुत से लोगों की मतलब ठीक भी हो जाती है और नहीं भी होती है, तो अगर जिसकी ठीक हो जाती है उनका तो ठीक है, जिसकी नहीं होती तो वो क्या कर सकते हैं अदर वे में? देखो, दो अलग अलग सब्जेक्ट हो जाते हैं। एक स्टैमरिंग होती है टेम्परेरी, ठीक है, कॉन्फिडेंस की लैक ऑफ कॉन्फिडेंस होती है। तो उसके लिए तो क्या होता है, जब चीज़ को तो प्रैक्टिस करते जाओगे, जैसे ऋतिक रोशन का एग्जाम्पल ले लेते हैं। एट वन पॉइंट ऑफ टाइम यूज्ड टू स्टैमर, बट दैट वाज अ नेचुरल प्रॉब्लम। मैं नहीं कह सकता कॉन्फिडेंस की वजह से थी या फैमिली बैकग्राउंड की वजह से नहीं थी। उसके लिए तो फिर आपको एक स्पेशलिस्ट होता है, उसके साथ में आपको कंसल्ट करना पड़ेगा। लेकिन जो नेचुरली होती है, जो बोलते टाइम होती है, इसमें क्या करते हो, जितनी प्रैक्टिस करते हो, आज हमारा वीडियो सेशन है, हो सकता है इतने अच्छे साउंड नहीं कर पा रहे हो, दूसरी बार करोगे तो और करने लगोगे। अच्छा, कई बार क्वेश्चन दिमाग में आता है कि स्टूडेंट बेस पूछते सर बॉडी लैंग्वेज, सर हमें क्या करना चाहिए, स्टूडेंट क्या करना चाहिए। देखो, डिमांड एंड सप्लाई होता है, आपके अंदर क्या स्किल्स होती हैं, बेसिक चीज़ें होनी चाहिए। और सबसे बड़ी चीज़ क्या होता है, डू नॉट बिकम टू कॉन्शियस। जैसे बहुत ज़्यादा कॉन्शियस हो जाते हो तो सब चीज़ें खराब हो जाती हैं। इतने पढ़े हुए कि बॉडी लैंग्वेज में तुम्हें नेचुरल चीज़ें करनी आनी है, ठीक है। कंपनी इसलिए बाहर नहीं करने वाली आपको कि आपने गलती से ऐसे कर दिया तो आपको कंपनी बाहर कर देगी, ठीक है। हाथ ऐसे मूव करके तो कंपनी आपको बाहर कर देगी। बेसिक चीज़ें होती हैं, उसको आपको फॉलो करना, स्किल्स उनको चाहिए ही चाहिए, उससे वो कॉम्प्रोमाइज़ नहीं करेंगे। दूसरा स्टेबिलिटी। और क्वेश्चन पूछो कोई दिमाग में हो। मैम जैसे बीटेक के बाद ना कई सारे खुल जाते हैं ना लेन्स हमारे पास कि कोई बहुत लोग जाते हैं एमटेक के लिए अप्रोच करते हैं, गेट एग्जाम, कैट एग्जाम, एमबीए, और बहुत लोग जॉब्स के लिए जाते हैं। तो मैम बेस्ट कौन सी लेन होती है कि मतलब जो इंसान को चूज़ करना चाहिए, स्टूडेंट को चूज़ करना चाहिए? तो जैसे कि आपने पूछा कि अगर हम बीटेक के बाद क्या क्या करें, बीटेक के बाद कौन से कोर्सेज करें, क्या हम एमटेक करें या हम गेट के लिए प्रिपरेशन करें, तो ये आपकी रिक्वायरमेंट के अकॉर्डिंग है कि आपका किस फील्ड में, किस डोमेन में इंटरेस्ट है। जैसे अब मैं बीइंग असिस्टेंट प्रोफेसर, मुझे अपग्रेड होना है, मैंने एमटेक किया, फिर मुझे पीएचडी करना है, तो मैं अपग्रेड होती रहूँगी, तब तक मेरी पोजीशन रहेगी। मतलब एज एन असिस्टेंट प्रोफेसर मैं जॉब कर सकती हूँ डिफरेंट कॉलेजेस में। तो उसी तरह से आपका जो इंटरेस्ट है, जैसे आपको सॉफ्टवेयर प्रोग्रामर की तरह जॉब कर रहे हो, तो सॉफ्टवेयर प्रोग्रामर की जो स्किल्स हैं, आप उसके लिए जो क्वालिफिकेशन है वो बीटेक सफिशिएंट है, बट उसके लिए जो स्किल्स चाहिए, मतलब सॉफ्टवेयर प्रोग्रामिंग की जो फर्दर स्किल्स है वो भी आपको अपग्रेड करनी पड़ेंगी। दूसरा ये करना है कि इनोसेंट इग्नोरेंट नहीं चाहिए। यू हैव टू थिंक अबाउट योर ओन इंटरेस्ट and always try to think like whether you will be able to pass out your whole life in that particular field or not, ठीक है। पहले क्या है, लाइफ एक बार चांस देती, लाइफ एक बार नहीं 2 बार 3 बार चांसेस दे रही, लेकिन उसको आप फॉलो करो, लिसन टू योर हार्ट, अपॉर्चुनिटी पहचाननी है कि कौन सी, और उसका बेनिफिट लो, ठीक है। लेकिन थिंक अबाउट योर ओन इंटरेस्ट फर्स्ट। तो और किसी के दिमाग में कोई क्वेरी, कोई क्वेश्चन हो? मैम आपके लिए क्वेश्चन है, जैसे कि फ्रेशर्स जो होते हैं, कुछ 4th ईयर के बाद वो प्लेसमेंट हो जाते हैं और कुछ नहीं हो पाते हैं, तो उनके लिए क्या अदर ऑप्शंस हैं? तो जो फ्रेशर हैं, अगर उनके पास अपग्रेडेड स्किल्स हैं तो दे कैन बी प्लेस्ड एनीवेयर, है ना। तो उनको क्या करना है कि उनको अपनी जो स्किल्स है उनको अपग्रेड करते हुए चलना है। और ऐसा नहीं है कि फाइनल ईयर के बाद ही वो प्लेस्ड हो सके, आप प्री फाइनल ईयर में भी प्लेसमेंट के लिए अप्लाई कर सकते हो। जैसे आपकी कुछ बैचमेट्स हैं, वो दे आर गेटिंग प्लेस्ड इन चेक इंडिया, है ना। तो उन्होंने क्या किया कि प्लेसमेंट के लिए अप्लाई किया प्लेसमेंट ड्राइव में, और वो सक्सेसफुल हुए, वहाँ पे उनका प्लेसमेंट हो गया, बट दे आर कंप्लीटिंग दियर कोर्स, ठीक है। तो इसके बाद क्या होगा कि वो अब जॉब में आ गए। आप लोगों को भी ऐसे ही करना है कि आपको क्या करना है, अपनी जो स्किल्स हैं उनको अपग्रेड करते हुए चलना है। ऐसा नहीं है कि आपको ये सोचना है कि नहीं फाइनल ईयर में जाके हमारा प्लेसमेंट होगा तो तभी जाके हम अपनी कुछ स्किल्स को सीख लेंगे, कुछ प्रोग्रामिंग स्किल्स सीख लेंगे, कुछ प्रोफेशनल स्किल्स सीख लेंगे। ऐसा नहीं है, आपको आज से अभी से अपनी स्किल्स को अपग्रेड करते चलना है। कैंपस प्लेसमेंट पे केवल आप रिलाई नहीं करोगे, ठीक है। इफ यू हैव गुड स्किल्स you can get a number of opportunities. अपने लिंक्डइन प्रोफाइल को अपग्रेड करो, ठीक है, सोशल साइट्स में आपको अपडेट करो, बिल्कुल। सो यू हैव टू सेल योरसेल्फ आउट। और बिलीव करना, अगर आपके पास स्किल्स हैं तो आपके पास में अनलिमिटेड अपॉर्चुनिटीज़ हैं। और वही जो चीज़ है कि अगर आपके पास में स्किल्स नहीं हैं तो आपके पास में कोई अपॉर्चुनिटी नहीं, तो ये बहुत ज़रूरी हो जाता है। जैसे हम लोग रेज्यूमे में काफ़ी गिमिक दिखा देते हैं कि बहुत ज़्यादा बढ़ा चढ़ा के हम लोग बड़ा सा रेज्यूमे हाई-फाई दिखाते हैं, तो इसका क्या इम्पैक्ट पड़ता है एज ए इंटरव्यू? देखो, जब सबसे बड़ी प्रॉब्लम क्या आती है फ्रेशर्स के साथ में और न्यू कमर्स के साथ में,
दिस फील्ड, जो आपको गाइड कर रहे थे, कई बार द पीपल आर फ्रॉम न्यू टू दिस फील्ड, Yes. वो समझ नहीं पाते आपको क्या बोलना चाहिए और क्या नहीं मेंशन करना है. सपोज मैंने आपसे स्ट्रेंथ बोला, आपने किसी ने सीवी मेंशन कर दिया स्ट्रेंथ लीडरशिप स्किल्स है. Yes. आप पूछो भाई लीडरशिप स्किल्स कैसे. सपोज मैं आपसे कहता हूँ आई एम अ वेरी गुड सिंगर एंड यू आस्क मी टू सिंग अ सॉन्ग एंड आई एम नॉट एबल टू सिंग, तो क्या इंप्रेशन होगा? यार ये बोला तो बहुत कुछ था, आता तो कुछ भी नहीं है. यही आप जो भी स्किल्स बोल रहे हो, जो भी स्किल्स बोल, लीडरशिप स्किल्स ये नहीं कि आप क्लास में मॉनिटर थे लीडरशिप स्किल्स हो गए क्या? नहीं. स्ट्रेंथ क्या? स्ट्रेंथ है वर्किंग फॉर लॉन्ग आवर्स. कैसे लॉन्ग आवर्स के सर 3 घंटे पढ़ा था हमने, लॉन्ग आवर्स. तो जो भी बोल रहे हो, पहला तो कभी भी अपनी जो स्किल सेट करते हो उसको 1 या 2 को स्ट्रेंथ को रखो. ठीक है, कोई एग्जाम्पल हो आपके पास में. ऐसे ही आपसे कई बार क्वेश्चन पूछते हैं आपसे कि एम्बैरेसिंग मोमेंट क्या है लाइफ का, हैप्पीएस्ट मोमेंट क्या है लाइफ का. तो क्वेश्चन कई बार दिमाग में आता है कि यार ये क्यों पूछ रहे हैं, इनको हमारी लाइफ में इंटरेस्ट क्या है. आपको एक फनी इंसिडेंट बताता हूँ. एक लड़की का है and I was feeling like what the hell she was thinking. I shouldn't use this word hell, but she gave such a funny answer. I was blank, like why she answered in such a way. Out of the blues. Out of the blues. She was asked कि जब भी कभी हायर करते हैं, so if a candidate is around 24-25, so HR में पूछते हैं कि what are your plans for marriage. लड़की से पूछता है. ऐसा तो नहीं कि भाई तुमने अभी कंपनी ज्वाइन करी, 2 महीने बाद को मैरिज है तो कंपनी को ट्रेन करना टाइट कर जाओगे. कंपनी हैड टू स्पेंड अ लॉट ऑफ अमाउंट ऑन योर ट्रेनिंग ऑल्सो. वो चाहते हैं कि आपसे लॉन्ग टर्म कमिटमेंट में वहाँ पे टिको, आप साल 2 साल का. तो शी वाज आस्क्ड दिस क्वेश्चन एंड शी सेड कि सर आपको मेरी शादी में क्या इंटरेस्ट है, आप मेरे से रिलेटेड क्वेश्चन क्यों पूछ रहे हैं, आपको एक क्वेश्चन तो नहीं पूछने की पर्सनल लाइफ है. एंड शी आंसर इन सच अ फनी वे एंड एचआर वाज टू मी कि ये कैसी लड़की है, कैसे बोल रही है, इसको यही नहीं पता है. तो ये चीज देखो कि आपकी पर्सनल लाइफ में बहुत इंटरेस्टेड नहीं है वो. आपसे एम्बैरेसिंग मोमेंट इसलिए पूछ रहे हैं कि भाई एम्बैरेसिंग मोमेंट में पहले तो आप कितने वोकल हो, वेदर यू आर एबल टू एक्सप्रेस योरसेल्फ और नॉट. हैप्पीएस्ट मोमेंट ये तो नहीं है कि हैप्पीएस्ट मोमेंट भाई पापा ने बाइक दिलाई थी 2 लाख की, वो मैं तेज स्पीड में चलाता हूँ, हैप्पीएस्ट मोमेंट मेरी लाइफ का हो गया. तो कैसे साउंड करोगे? अच्छा एक वर्ड होता है तो शायद कुछ लोगों को अच्छा नहीं लगेगा, लेकिन मैं उस पर बिलीव करता हूँ, फैब्रिकेशन. कुछ चीजें आपको फैब्रिकेट करनी पड़ेंगी कंपनी की रिक्वायरमेंट के हिसाब से. ठीक है, आपको मैच्योरिटी, थोड़ा सा थॉट प्रोसेस मैच्योर होना चाहिए कि भाई एम्बैरेसिंग मोमेंट लाइफ का था तो एम्बैरेसिंग मोमेंट से क्या सीखा. जैसे मेरी लाइफ में एम्बैरेसिंग मोमेंट था, मैं शायद अभी डिस्कस नहीं कर पाऊंगा. अगर आई वाज इन 12th, बहुत लंबा हो जाएगा इस चीज़ को डिस्कस करना. बट उस 12th के एम्बैरेसिंग मोमेंट में मैंने किसी को कॉपी किया था. उस कॉपी करने में मैंने सीखा कि भैया ये कॉपी तो करा है, लेकिन कॉपी करने की क्या बेइज्जती हो सकती है आपकी, क्या मजाक हो सकता है. चलो इस बारे में बात हो रही तो मैं एक सेकंड पे शेयर करता हूँ. 2 of my friends, they had got a bad habit to smoke. So we happened to go to Connaught Place. My friend started smoking and I'd never smoked in the course of my life. But what I saw 2 girls were smoking just before my friends. तो मैं बहुत मोटिवेट हो गया भाई कि क्या होता है, वो पी रहे, ये सिगरेट पी रहे, तो मुझे भी ट्राई करना चाहिए, मैं भी कुछ मैच्योर फील करूंगा. तो what I did, I took cigarette from one of my friends. I started doing like this. And one of the girls was staring at me. She came to me, she asked me, "Bachcha, cigarette do?" And she asked me and she took cigarette and she smoked. If you want to smoke, smoke in this way. Otherwise, do not smoke. You are a small kid. तो मैंने सीखा यार ये तो बेइज्जती हो गई मेरी बहुत की, मैंने ट्राई की जो चीज़ नहीं करनी चाहिए, क्यों करी भाई. तो ऐसी चीज़ों की आपने क्या सीखा. तो मैंने उस दिन से सीखा कि भैया पहले जैसे हो वैसे ही पर्सनैलिटी रहेगी. कुछ चीज़ें फैब्रिकेट तो करोगे, फैब्रिकेट तो करना होता है, लेकिन ऐसे थोड़ी किसी को कॉपी कर दोगे जो चीज़ बिल्कुल नहीं है. वही आपके सीवी में होता है. स्ट्रेंथ है, वीकनेस है. भाई उसने लिखा लीडरशिप, मैंने भी लीडरशिप लिख दिया. पूछो भाई प्रूफ करो, कोई एग्जाम्पल है? कुछ नहीं है. स्ट्रेंथ लिखा भाई अडेप्टेबल है. कैसे अडेप्टेबल हो, बताओ अडेप्टेबल कैसे. कोई एक एग्जाम्पल. जितने स्मार्ट होगे, जितनी चीज़ों को समझोगे और जितना आप अपने साथ वालों से अलग हो जाते हो, उतने हायरिंग में चीज़ें थोड़ी सी आसान हो जाती हैं. पूछो कोई क्वेश्चन दिमाग में पूछो. बहुत अच्छा क्वेश्चन था. सर इंटरव्यूज का होता है ना, कितने सारे राउंड्स होते हैं इंटरव्यूज में कि 10 राउंड्स हैं, 12 राउंड्स हैं, 6 राउंड्स हैं, किसी में तो 2 ही राउंड्स होते हैं. तो सर उसको कैसे डील करें? देखो फोबिया होता है. व्हाट हैपेंड इन माय केस, अगेन आई विल टेक माय एग्जांपल. व्हेन आई गेव इंटरव्यू माय फर्स्ट कंपनी, सो देयर वर 10 राउंड्स. तब सुना 10 राउंड से तो भैया भाग लो वहाँ से. 10 राउंड है, 10 राउंड मतलब भाग लो, रुको नहीं. और दूसरा क्या होता है कि हमें डर रहता है अपनी लुक्स को लेकर. मैं स्पेशली डिस्कस कर रहा हूँ कि हमारी हाइट कैसी है, हमारी लुक्स कैसी है, हमारी पर्सनैलिटी मतलब हाइट और लुक्स नहीं होती है. ठीक है, मेरे साथ भी ऐसी होता, बहुत कॉन्शियस हो गया था. द पीपल हु वर गिविंग इंटरव्यू देयर, दे वर आउट ऑफ द वर्ल्ड. ऐसा लग रहा था कि भाई किसी फैशन वर्ल्ड से आ गया और मैं कहाँ पहुँच गया. अटायर थे, लुक्स वाइज, हाइट, कॉम्प्लेक्शन. होता नहीं कि हमारी कंट्री में कुछ होता है कॉम्प्लेक्शन बहुत ज़्यादा माने रखता है. सो आई वांटेड टू रन अवे फ्रॉम देयर. लेकिन भैया पता चला और दूसरा सुन लिया 10 राउंड. अब क्या करूँ. तो जब राउंड्स दिए, इंटरव्यू दिया, सो दे वर आस्किंग द सेम क्वेश्चन. दे वांटेड टू सी व्हाट आई वाज स्पीकिंग अप, वेदर आई वाज
स्पीकिंग अ ट्रूथ और नॉट, वेदर आई वाज एबल टू एक्सप्रेस माई सेल्फ इन डिफरेंट राउंड्स और नॉट। और ऐसा तो नहीं है कि मेरी पहले राउंड में कोई दूसरी बात है, 10वें राउंड तक बातें बदल गई हैं। और ज़्यादातर वो क्या चेक कर रहे थे, जो मैंने देखा था, वो वेरी कॉन्शियस अबाउट माई स्टेबिलिटी, तो भैया कितने टाइम तक कंपनी में टिकूंगा। ऐसा तो नहीं कि आया 3-4 महीने पैसे कमाए, पॉकेट मनी भरी, चले गए, साउंड तो अच्छा कर रहे हो। तो ये सारी चीज़ें राउंड्स में कभी भी डरना नहीं है, क्योंकि राउंड्स में उनको पूछनी वही चीज़ है 10 राउंड तक पूछनी होती है। ऑफ्स तक उनको चेक स्टेबिलिटी करनी होती है कि आपकी, एक आपको चेक करना होता है आपके अंदर स्किल्स क्या हैं। चीज़ें वही घूम फिर करूँगी, चाहे वो 10 राउंड्स में, 20 राउंड्स में, चाहे 2 राउंड्स में, दिल आस्क द सेम क्वेश्चन। तो ये राउंड्स बहुत ज़्यादा माने किसी कंपनी में नहीं आते। तो मैम जैसे होता है ना, बहुत लोग ऐसे होते हैं जो प्रेजेंटेशन उन्होंने जो प्रिपेयर करी होती है, स्लाइड्स प्रिपेयर करी होती है, उसी को पढ़ करके ही बोल देते हैं। ऐसा लगता है कि हाँ वो बिल्कुल देख देख करके बोलते जा रहे हैं, समझ में किसी को कुछ नहीं आता है। तो मैम इसको कैसे सही करना चाहिए? फर्स्ट ऑफ ऑल प्रेजेंटेशन के अंदर उतना ही कंटेंट, टू द पॉइंट कंटेंट होना चाहिए। इतना सारा कंटेंट नहीं होना चाहिए कि हम हर एक बात उस कंटेंट को रीड करके बता पाएँ। तो टू द पॉइंट होना चाहिए। हमने एक पॉइंट पढ़ा, उसके रिगार्डिंग जितने भी एग्जाम्पल्स हैं, जितनी भी बातें हैं, वो हम डिस्कस करें। फिर दूसरा पॉइंट, यानी टू द पॉइंट प्रेजेंटेशन होनी चाहिए। बाकी सर देखो, एक चीज़ बहुत ज़रूरी है, जब भी कभी बात करो तो इंटरेक्शन बहुत ज़रूरी है। Yes. अगर मैं आपसे बात कर रहा हूँ और मैंने अगर स्पीच को तैयार करके यहाँ पे आके बोल रहा होता, इतना खराब साउंड कर रहा होता, जो अभी वीडियो देख रहे हैं वो भी ना वीडियो देख रहे होते। Exactly. तो आप भी जब भी कभी प्रेजेंटेशन देते हो तो एक तो आपको सब्जेक्ट नॉलेज होनी चाहिए, आपको इंटरेक्शन होना चाहिए। और एक चीज़ बहुत समझने की ज़रूरत है, जो आज कई बार सॉरी टू से टीचिंग एंड पे भी लोग नहीं समझ पा रहे हैं कि चीज़ें बिल्कुल बदल चुकी हैं, चुकी हैं। आपको भी समझना, हम टीचर्स को भी समझना है, एडेप्टेबिलिटी चाहिए। वो पहले के जो ट्रेडिशनल मेथड था, हम लोग भी वो फॉलो नहीं कर सकते पढ़ाने के लिए, वही आपके साथ में है कि आप वो पुराने मेथड से नहीं पढ़ाए जा सकते हो। यू फील यू आर गेटिंग बोर्डम एक आ जाता है, तो दोनों एंड पे है। तो आप लोग के नई जनरेशन के मैं कहना चाहूँगा, बहुत ज़रूरी कि इंटरेक्शन सीखो। और अगर कुछ भी सीखना है तो तुम सीखो कि आपको वो करना है कि आप साउंड ना करो जो कर रहे हो। आप सपोज मैं बोल रहा हूँ, मैं स्ट्रगल करूँ सेंटेंस बनाने में, सोचने में, तो बहुत खराब लगेगा। तो वही आपको करना है, जब प्रेजेंटेशन दे रहे हो नेचुरल अपने सब्जेक्ट को तैयार करो, इंटरेक्शन करो, बात करो। और इंटरेक्शन केवल एक कंडीशन पे कर सकते हो, जब सामने वाले को समझने की कोशिश करोगे, जब उस चीज के बारे में नॉलेज होगी कि हाँ हम लोग कॉन्फिडेंट है कि हाँ ये चीज हमको आती है, तो फिर हम अच्छे से उसको एक्सप्लेन कर सकेंगे। वही जरूरी भी है, एटीट्यूड भी चाहिए उसी टाइप का चाहिए। मैम एक क्वेश्चन था मैम, रिसर्च पेपर से रिलेटेड। जैसे अगर हम लोग अभी प्री फाइनल ईयर में हैं, तो अंडर ग्रेजुएशन ही है, तो क्या हम लोग रिसर्च पेपर पे वर्क कर सकते हैं? बिल्कुल, आप लोग रिसर्च पेपर पे वर्क कर सकते हो। इसके लिए ज़रूरी नहीं है कि आप ग्रेजुएट हो जाओ उसके बाद ही आप रिसर्च पेपर, इसके साथ साथ आप पेटेंट भी कर सकते हो। कोई प्रोजेक्ट आपने अपनी इंटेलिजेंसी से बनाया, अपनी स्किल्स का यूज़ किया, अपना हार्ड वर्क यूज़ किया आपने, और कोई प्रोजेक्ट क्रिएट कर दिया, तो उस प्रोजेक्ट को आप पेटेंट भी करवा सकते हो। उसके रिगार्डिंग आप रिसर्च पेपर लिख सकते हो, और उसका जॉब प्लेसमेंट में बहुत अच्छा क्रेडिट मिलता है आप लोगों का रिसर्च पेपर का। और कोई क्वेश्चन? सर, वॉक इन इंटरव्यू का आप क्या सजेशन देना चाहेंगे? देखो, मैंने पहले भी चीज़ बोली है कि जॉब प्लेसमेंट की कहीं कोई कमी नहीं होती है। अपना जितनी एनर्जी लगानी है, और एक चीज़ और भी करो, कई बार आप लोग के साथ में क्या होता है, सबके साथ में, कि साथ वाले होते हैं मिसगाइड कर देते हैं। Yes. अपने नए नए सजेशन देते रहते हैं, और उनके एटीट्यूड को देख के भी अपना एटीट्यूड चेंज कर देते हो। यार वो नहीं कर रहा तो मैं क्यों करूँ, ठीक है। तो मैंने अपनी वर्कशॉप जितनी भी करी है, तो पहला सजेशन मैं देता हूँ कि ट्राई टू बी सेल्फिश, थिंक अबाउट योरसेल्फ, थिंक अबाउट द रियल सिनेरियो। भैया चारों तरफ चीज़ें क्या हो रही, मुझे क्या करना है, अपने आप को कितना चेंज करना है, कितना मोटिवेट करना है, कितना चीज़ों को अपग्रेड करना है। तो अगर वो चीज़ों में करने को तुम यू आर रेडी, तो हो सकता है आज के 5 सालों बाद में आप जहाँ पे स्टैंड कर रहे हो, आपके साथ वाला नहीं हो, ही और शी इज स्ट्रगलिंग, तो इस चीज़ों से बहुत माने रखता है। तो इन पे बहुत वर्क करो, ठीक है। पर्सनैलिटी पे बहुत वर्क करो, क्योंकि क्या होता है, यू हैव टू सेल योरसेल्फ आउट, वो बहुत ज़रूरी रहता है। सर, टाइम शेड्यूलिंग बहुत इंपॉर्टेंट है मेरे सबसे लाइफ में, कि हम लोग किसी चीज़ को बहुत जल्दी ज़्यादा टाइम दे देते हैं, किसी चीज़ को बहुत कम टाइम देते हैं। शेड्यूलिंग कितना इंपॉर्टेंट है, ये हम लोग को समझना पड़ेगा, बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट। एक चीज़ होता है कि हमारे साथ में लोग प्रैक्टिकल नहीं होते हैं। जैसे मैं छोटा सा एग्जांपल देता हूँ, कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स में होता है। जैसे मैंने कई कैंडिडेट देखे, जैसे सपोज कैट का पेपर दे रहे हैं या अदर एग्जाम दे रहे हैं, SSC CGL दे रहे हैं, तो वो क्या करते हैं, दे आर बायस टुवर्ड्स अ पर्टिकुलर सब्जेक्ट। सर हमें ये तो अच्छा लगता है, इसको ही तैयार करेंगे, इसको तो 5 घंटे देंगे, बाकी को नहीं देंगे। अब अच्छा सिंपल से एग्जाम्पल कैट का ले लेते हैं। सपोज एक वर्बल एबिलिटी सेक्शन है, वो इन्जॉय नहीं करते हो, क्योंकि अगर आपको कॉम्प्रिहेंशन अच्छा नहीं लगता, आप इन्जॉय नहीं करते हो। सपोज आप क्या करते हो, LR में 8 घंटे लगा रहे हो, बट अल्टीमेटली क्या होगा, अल्टीमेटली तो ये होगा ना कि जब एग्जाम दोगे तो सारे का परसेंटाइल होगा, तब क्या करोगे, क्या प्रूफ करोगे।
तो आपको गाड़ी तो चारों टायर पे चलानी ना, कि 3 टायर तो बहुत अच्छे हैं, चौथे में हम हवा ही नहीं बनाएंगे, चलो छोड़ो 3 टायर पे चलाएंगे. तो इट हैज़ बिकम द बैड हैबिट. So what I personally think, you need to give equal importance. You're good at subject, that's good, very good. बट अगर उससे काम नहीं चल सकता है तो कहते हैं ना कि कई बार चीज़ें मन से नहीं करनी पड़ती, प्रैक्टिकल चीज़ों को देख के करना पड़ता है, होता है. तो सर एमएनसीज में जैसे क्या ये जो बॉडी पोस्चर होता है, जो हम लोग जेस्चर्स यूज़ करते हैं और जिस तरह से है ना क्लोथ्स फॉर्मली एकदम अच्छे से रहते हैं, तो मैम ये क्या इम्पोर्टेंट है, मतलब ये ज़रूरी होता है क्या? देखो मैं 2 कंट्रोवर्शियल चीज़ें बोलूँगा, 2 चीज़ों को कॉन्ट्राडिक्ट करूँगा. इट डिपेंड्स अपॉन कंपनी टू कंपनी. अब जैसे कई कंपनीज हैं, उन्होंने क्या किया, इनफॉर्मल को आज की डेट में फॉलो करना शुरू कर दिया है. ठीक है, दे डू नॉट माइंड लाइक व्हाट यू आर वेयरिंग, बिकॉज क्लाइंट इंटरेक्शन नहीं है, वो फॉर्मल पे जोर नहीं देते हैं. और वहाँ पे फर्स्ट नेम कल्चर है. मैं जिस भी कंपनी में रहा हूँ तो वहाँ पे फर्स्ट नेम कल्चर है. जैसे व्हेन आई वाज इन बार्कलेज, तो वहाँ पे था कि फिलिपा मैथ्यू थी, शी वाज द CEO ऑफ द कंपनी. तो हम लोग को नीचे मिलती थी, अगर मैंने गलती से कह दिया कि सपोज गुड इवनिंग मैम, सो शी यूज्ड टू से एम आई साउंडिंग लाइक एन ओल्ड वुमन, दो शी वाज अराउंड 60, सो यू कॉलिंग मी मैम, कॉल मी फिलिपा. So used to get irritated if I used to call her ma'am. तो इट डिपेंड्स अपॉन कल्चर टू कल्चर. लेकिन अपने को भी आपको कैसे अपग्रेड करना है, दोनों चीज़ अपग्रेड करना है. आप इनफॉर्मल पे नहीं जाओ, अभी फॉर्मल पे अपग्रेड करना है, क्योंकि आपको ये देखना है कि आपको रिप्रेजेंट कर रहे हो. ठीक है, बाद में कंपनी कल्चर क्या, आप अपने हिसाब से अपने को एडेप्टेबल हो, अपने को चेंज कर लो जैसा कंपनी कल्चर है. लेकिन उस समय पे आप ये नहीं कर सकते. आप भी कहीं पे जा रहे हो और अगर आपको पता, सपोज मैं यहाँ बैठा हूँ, आज मैं यहाँ पे बरमूडा टी-शर्ट डाल के चला आता, तो आपको शायद वो इंटरेक्शन में अच्छा नहीं लगता. या आप यहाँ बैठे हो, अभी यहाँ पे भी आप ऐसे चले आते, तो आई डिडंट एंजॉय एट ऑल. आप यूनिफॉर्म में हो तो हम समझ रहे हैं कि आप स्टूडेंट हो, और हम लोग वैसे ही बात कर रहे हैं आपसे जैसे क्लास में करते हैं. तो ये चीज़ें तो बहुत होती हैं. तो कंपनी कल्चर क्या है, उसमें अपने आप को चेंज कर लो. आज कंपनी कल्चर काफ़ी चेंज हो चुका है. दे आर गिविंग यू लॉट ऑफ फ्रीडम. जैसे कई बार अभी आप लोगों के दिमाग में आता है कि सर हम लोग बड़ी कंपनी में डरते हो, यू गॉट फोबिया कि सर बड़ी कंपनी है, बड़ी कंपनी को छोटी से स्टार्ट करना चाहिए. देखो, वट एवर अपॉर्चुनिटी यू आर गेटिंग, स्टार्ट. यू आर गेटिंग द अपॉर्चुनिटी बिग कंपनी, स्टार्ट. यू आर गेटिंग अपॉर्चुनिटी स्मॉल कंपनी, स्टार्ट. बड़ी कंपनी में कई बार बेनिफिट क्या मिलता है कि एक्सपोजर मिलता है. भाई उनका हो सकता है वो आपको अच्छी सैलरी ऑफर ना करो शुरू में, और हमेशा ध्यान रखना है जब फ्रेशर सैलरी पे बहुत फोकस शुरू में नहीं करना, क्योंकि हो सकता है कुछ साल स्ट्रगलिंग हो आपके, लेकिन बाद में बहुत कुछ मिलेगा. कंपनी का एक्सपोजर अच्छा होगा, ट्रेनिंग मॉड्यूल अच्छा होगा, ठीक है, बहुत कुछ सीखने को मिलेगा. कोई क्वेश्चन पूछो सर. जैसे कि फ्रेशर्स होते हैं तो पहली कंपनी में प्लेस हो जाते हैं, तो उनको कम सैलरी मिलती है, तो वे कहते हैं कि हमें ये इस कंपनी में जॉब नहीं करेंगे क्योंकि हमें प्रॉपर सैलरी नहीं मिल रही है या कम सैलरी मिल रही है. तो उस पर आप क्या सजेशन देना चाहेंगे? देखो, मैं सिंपल सी चीज़ कहूँ, मैंने पहली अपनी जॉब करी थी. आफ्टर 12th स्टार्टेड वर्किंग, आई वाज ऑफर्ड $1000, केवल 1000 रुपये. मेरे घर में बहुत लताड़ लगाई गई थी, बेटा इतना पैसा दिया, इतना एजुकेशन में खर्च किया, तुम 1000 रुपये में जॉब कर रहे हो, तुम्हें शर्म नहीं आती? खानदान का नाम तो वो दिया तुमने. मैंने कहा आप सोचोगे वैसे ही जैसे आपकी सोच है. तो एक चीज़ देखना, जो मैंने देखा है टिपिकल हम लोग का, इवन आई बिलोंग टू मिडिल क्लास फैमिली, आई हैव सीन, सो आई एम नॉट गोइंग टू पॉइंट आउट मिडिल क्लास फैमिली, लेकिन जो द पीपल आर सिटिंग एट द टॉप लेयर और जो मिडिल में बैठे हुए हैं, हम लोग जो फोकस करते हैं वो किस पे, अमाउंट पे फोकस करते हैं, भैया कितना मिल रहा है. हम फ्यूचर प्रोस्पेक्ट में नहीं जाते. जो ऊपर वाले बैठे हुए होते हैं, दे आर फोकसिंग ऑन लर्निंग. ठीक है, आपको पैसा कम मिला लेकिन आपको लर्निंग अपॉर्चुनिटी मिली. आप किसी कंपनी में जाके बोलोगे कि यार मैंने ये सीख के आया, और लाइव एक्सपोजर था. सैलरी क्या मिली, इससे क्या मतलब है, एक्सपोजर तो था ना. और जब तक स्टार्ट नहीं करोगे करियर, तब तक कुछ होना नहीं. तो इस पर बहुत फोकस नहीं करना. बड़ी कंपनी, छोटी कंपनी, दोनों के जैसी भी कंपनी है, स्टार्ट. तो सर डिस्कशंस जैसे होता है, डिस्कशन राउंड होता है जो ग्रुप डिस्कशन, तो सर उसमें ऑब्वियसली क्योंकि ऐसे बहुत लोग होंगे कि हाँ जिनकी इंग्लिश बहुत अच्छी होगी, कुछ लोग होंगे जो टेक्निकली तो स्ट्रांग होंगे लेकिन उनकी क्योंकि वर्बल स्किल्स या सॉफ्ट स्किल्स अच्छी नहीं है, तो फिर वो उतना अपने आप को रिप्रेजेंट नहीं कर पाएंगे और वो उसी राउंड से बाहर हो जाते हैं. तो सर उसके लिए फिर चलो मैं एक चीज़ और बोलता हूँ, इसको आंसर देने से पहले मैं SSB पे जाता हूँ. SSB आपको पता होगा, CDS NDA में जैसे SSB का होता है, 5 दिन का प्रोसेस होता है. कई बार एक कैंडिडेट होता है, ही इज़ वेरी गुड एट कम्युनिकेशन स्किल्स, ही इज़ आउट, तो उसको समझ में नहीं आ रहा भैया क्यों आउट क्यों हो गए. तो जब कंपनी आपको हायर करती है, तो अगर केवल कम्युनिकेशन पे हायर करें, केवल आपकी हार्ड स्किल्स पे हायर करें, तो फिर हायर हो ही जाए ना. उनको एक कॉम्बिनेशन चाहिए. हो सकता है उनको आप कम्युनिकेशन वाइज बहुत ज़्यादा अच्छे साउंड नहीं कर रहे हो, लेकिन स्टेबिलिटी साउंड कर रही है, इंथुजियाज्म साउंड कर रहा है, वर्क की तरफ आपका जो फैसिनेशन है वो साउंड कर रहा है ना, तो आपको हायर करेंगे.
हो सकता है भाई आप ट्रेनेबल हो, हमेशा ध्यान रखना कंपनी को एक चीज़ चाहिए कि आप ऐसे ना हो कि ट्रेन ही नहीं करे जा सकते हो, तो वो ट्रेनेबल हो, आप ट्रेन कर सकती कंपनी। अब आप बोलो एज, तो कंपनी कहती भैया मैं इनको ट्रेन नहीं कर सकता, इतने मेरे पास सर दर्द नहीं कि मैं इनको ट्रेन करूँ, ठीक है। दे आर नॉट आस्किंग टू स्पीक अप इंग्लिश लाइक योर मदर टंग, दे आर नॉट आस्किंग फॉर, इफ यू आर एबल दैट्स ग्रेट, बट अगर एक स्किल अच्छी होती तो कई बार दूसरी गड़बड़ होती है। तो हमेशा वो सब चीज़ें कॉम्बिनेशन देख रहे हैं, आपको दिखाना है। कभी भी इंटरव्यू में ध्यान रखो, आप 2-3 चीज़ों को एज अ फ्रेशर सेल आउट करने की कोशिश को, सेल आउट इसलिए कह रहा हूँ कि मार्केटिंग एस्पेक्ट में सब चीज़ें आप बताओ, अपनी किस चीज़ को बताओ, आप अपनी स्टेबिलिटी को बताओ, आप लर्निंग एटीट्यूड को बताओ, आप कमिटमेंट टुवर्ड्स वर्क बताओ, आप बताओ मैं कंपनी में स्टे करूँगा लॉन्ग टाइम तक, ठीक है। बताओ कि भाई हायर क्लास से नहीं हो, बताओ मिडिल क्लास से हो, तो मेरी करियर है, आई एम सीकिंग फॉर लॉन्ग टर्म करियर, आई एम नॉट गोइंग टू स्टे फॉर विंटर वेकेशन और समर वेकेशन, आई एम गोइंग टू अर्न माय पॉकेट मनी, आई एम गोइंग टू स्टे इन योर कंपनी। मैं बताता हूँ, मैं कंपनी ने देखा दिल्ली वगैरह में ऐसा एटीट्यूड है बच्चों का, दे बिलोंग टू वेरी अफ्लुएंट फैमिली, पता चल रहा है कि 30,000 सैलरी मिल रही तो मर्सिडीज ऑफिस जा रहे हैं, ठीक है। अब मर्सिडीज ऑफिस जा रहे हैं तो तुम समझ लो कि 30,000 की सैलरी में मर्सिडीज ऑफिस कैसे जा सकता है। एक तो स्टेटस क्रिएट हो गया, 3 महीने में उनको पॉकेट मनी क्रिएट करना है, दे हैव गॉट वेरी अफ्लुएंट फैमिली, तो उनको करना ही नहीं। अब कंपनी भी क्या करती, कंपनी चीज़ों को चेक करती कि भैया ये तुम जो जा रहे हो, तुम्हारा बैकग्राउंड है, तुम स्टे तो करोगे नहीं, तुम तो पॉकेट मनी अर्न करने आ रहे हो, तुम तो एक लायबिलिटी हो गए ना कम। तुम भी एज अ बिजनेसमैन सोचोगे, कॉर्पोरेट वर्ल्ड में सोचोगे आप लोग, आपको पता चलेगा कि उनको एसेट चाहिए। तो इस चीज़ से कभी ना डरो कि हम छोटे शहर से हैं, हम इस स्कूल से हैं, आप क्या सेल आउट कर सकते हो, स्टेबिलिटी कर सकते। तो सर हमने जैसे सुना है कि हाँ ट्रेनिंग होती है, इंटर्नशिप्स होती है, तो सर दोनों में डिफरेंस क्या है, ट्रेनिंग में और इंटर्नशिप में, कि क्या पहले करना चाहिए, किस तरह से करना चाहिए मैम? अनुष्का, इंटर्नशिप और ट्रेनिंग में डिफरेंस ये होता है कि इंटर्नशिप में हम लोग क्या लर्न करते हैं, हम लोग प्रैक्टिकल करते हैं, मतलब हम लोग छोटी छोटी चीज़ें सीखते हैं, इनिशियली स्टार्ट करते हैं। जबकि ट्रेनिंग में क्या होता है कि हमने जो इंटर्नशिप में लर्न किया उसको हम लोग कैसे इम्प्लीमेंट करते हैं। तो ट्रेनिंग में हम लोग वो चीज़ें सीखते हैं कि उन चीज़ों को जो हम लोगों ने लर्न किया उसको किस तरह से इम्प्लीमेंट करना है। जैसे हमें प्रोजेक्ट बनाना है, तो जो चीज़ें हमने इंटर्नशिप में सीखी हैं, जैसे अगर पाइथन हम लोगों ने सीखा है इंटर्नशिप में, तो उस पाइथन का यूज़ करके हम किसी प्रोजेक्ट को बिल्डअप कर पाए। तो ऑब्वियसली इंटर्नशिप पहले होना चाहिए देन ट्रेनिंग। जैसे कि मैम हमारा कॉलेज बहुत से कोर्सेज प्रोवाइड कर रहा है, ऑनलाइन भी प्रोवाइड कर रहा है, ऑफलाइन भी, तो बेटर कौन सा है, मतलब ऑनलाइन ज़्यादा बेटर रहेगा या ऑफलाइन कोर्स? देखिए, ये डिपेंड करता है सिचुएशन पे कि आप अगर कोर्स करना चाहते हो या कोई ट्रेनिंग करना चाहते हो तो वो ऑनलाइन करो या ऑफलाइन करो। तो ये डिपेंड करता है सिचुएशन में कि अगर आप एक ऐसी जगह पे, जैसे आपने कहा आप उरई से हो, तो आप ट्रैवल नहीं कर पाओगे, ठीक है। आप कानपुर में कहीं काकादेव में आप ट्रेनिंग करना चाहते हो, बट काकादेव डेली अप डाउन करना बहुत ज़्यादा मुश्किल हो जाएगा, हाँ टाइम टेकन हो जाएगा। तो आप चाहोगे कि मैं घर से ही बैठ करके वहाँ से वो चीज़ें लर्न कर सकूँ। तो ऑनलाइन उस सिचुएशन में ठीक है जब आप ट्रैवल नहीं कर सकते हो, आप टाइम बचाना चाहते हो, और ऑफलाइन उस सिचुएशन में ठीक है जब आप जैसे ऑफलाइन में गए, आप वहाँ पर जाके चीज़ें सीख रहे हो, ठीक है। तो ट्रेनिंग कर रहे हो, आप किसी कंपनी में जा रहे हो, वहाँ पे चीज़ें सीख रहे हो, तो वहाँ आपको वो इन्वायरमेंट मिलता है, वो जॉब इन्वायरमेंट। जब आप जॉब नहीं कर रहे हो बट फिर भी आप सीख रहे हो कि किसी एम्प्लॉय के साथ किस तरह से बात करनी है, एटिकेट सीख रहे हो आप। तो देखो एडेप्टेबिलिटी होनी चाहिए, बिल्कुल मेनी टाइम्स आपके हाथ में कोई चीज़ें नहीं है। पेंडेमिक आ गया, एजुकेशन नहीं हो पा रही थी, मोबाइल फ़ोन पे कॉलेज स्कूल में ले जाना गलत था, बट आज की डेट में मोबाइल फ़ोन पे एजुकेशन ले रहे हो, ठीक है। नेट बहुत ज़्यादा यूज़ करना गलत था, पर आज की डेट में नेट से ही एजुकेशन आ रही है। सो यू नीड टू बी अडेप्टेबल, क्योंकि लर्निंग कभी रुकनी नहीं चाहिए। टाइम प्रोसेस होता है ना कि आपकी लर्निंग चलता जा रहा है, अब चीज़ें कैसे हैं उसके हिसाब से अपने को चेंज करना होता है। तो ऑनलाइन, हाँ ऑनलाइन ऑफलाइन अब डिपेंड करता है। फॉर एग्जाम्पल ऑनलाइन में है, कहीं आप यूके में कोई बंदा बैठा उससे ट्रेन ले सकते हो। अब यूके ऑफलाइन जाना तो आप समझ सकते हो कितना प्रोसेस था, पॉसिबली कितना बेयरअप करना पड़ता, तो डिपेंड करता है कि कैसी चीज़ है। शायद मैंने इसी पे एक वेबसाइट अपनी बनाई थी, उस पर मेरा मेन मोटो यही था कि लोग परचेस करना चाहते थे क्वांटम या कुछ और सीरीज़ के लिए लेने जाते थे, तो उस पर मैंने ये करा कि एज अ स्टूडेंट सभी लोग एट लास्ट में पेपर के 1-2 दिन पहले या 1 हफ्ते पहले ही उठाते हैं सब चीज़ें। तो नोट्स मैंने जो उसमें प्रोवाइड करे थे कुछ इसीलिए प्रोवाइड ही करा था कि सब लोग को बहुत अडेप्टिव हो जाएगी कि बस एक लिंक शेयर करी, उस बंदे ने डाउनलोड करा तो नोट्स मिल जाएगा पढ़ लिया।
हाँ। तो मैंने इसको कन्वीनियंट बनाया। तो ये वेबसाइट आपने कब बनाई? मैम, थर्ड ईयर में, मैम। सेकेंड ईयर में? यस मैम। तो देखिए, आप सेकेंड ईयर में हो, आप वेब डेवलपर नहीं हो, आप ग्रेजुएटेड नहीं हो, फिर भी आपने सेकेंड ईयर में ही वेबसाइट बना ली। इसे बोलते हैं अपग्रेडेशन, कि आपने अपनी Yes. स्किल्स को अपग्रेड किया, है ना? और देखो, मैं आप लोगों से हमेशा कहता हूँ, जो आपकी स्किल्स होती हैं हमेशा आपकी स्किल्स यूजफुल होती हैं, कहीं ना कहीं आपकी स्किल्स को यूजफुल होगी। सो ट्राई टू यूटिलाइज योर टाइम, कैसे यूटिलाइज कर रहे हो टाइम को, यूटिलाइज कर रहे हो, ऑपरेट कितना कर रहे हो, क्योंकि जब जॉब मार्केट में जाओगे तो आपकी कितनी स्किल्स हैं प्लेज अ वेरी वेरी क्रूशियल। यस। और कोई भी चीज़ दिमाग में पूछो, आज का सेशन है हम लोग का, इट्स अ सॉर्ट ऑफ कॉन्वर्सेशन ऑल्सो, कोई भी डाउट्स हो पूछो हम लोगों से। कुछ शेयर करना चाहते हो वो भी यहाँ शेयर कर सकते हो, कुछ अपना पर्सनल एक्सपीरियंस है शेयर कर सकते हो, बात कर सकते हो। पर्सनल एक्सपीरियंस में मैम ये है कि मैम मेरे को थोड़ा सा डर है कि इंटर्नशिप के लिए मैंने कई जगह अप्लाई करा, तो 2 जगह मैंने इंटरव्यू बैठ के फेस भी करा था, बट वहाँ पास ये लगा कि अभी मेरे को बहुत सारी चीज़ें जो है नहीं आती है, शायद मेरे को किसके साथ टच में रहना चाहिए था जो मेरे को गाइड कर सकता। तो आज मैं इस 45 डेज की जो ट्रेनिंग है मैं इसमें प्लेस हो पाता, जिस वजह से शायद मेरा 2 बार नहीं हो पाया। तो शायद अपने जो व्यूअर्स हमको ही बताना चाहिए कि किसी को टाइम टू रियलाइज करो, बी इन द टच ऑफ द पीपल, डू नॉट टेक थिंग्स वेरी लाइटली। होता नहीं साथ में कई बार चीज़ों को, अरे ये तो पैंडेमिक चल रहा है, टच में कैसे रहें। हम लोग अपने सारे एफर्ट कर रहे हैं, हम लोग ऑनलाइन ऑफलाइन जितने एफर्ट्स कर सकते कर रहे हैं। तो ट्राई टू टेक द एडवांटेज कि कहाँ से आपको नॉलेज गेन हो रही है, वो बहुत बेनिफिट करेगी बाद में, वो बहुत बेनिफिट होगी। और कोई सर, हाँ, ये सर होता है ना कि बहुत सारे स्टूडेंट्स हैं, जैसे हमारे कॉलेज में भी हैं, जो सिर्फ टेक्निकल ही नहीं, जैसे सिर्फ एजुकेशन, सिर्फ किताबी पढ़ाई नहीं कर रहे हैं, और भी चीज़ें हैं। जैसे सपोज किसी को गिटार बजाना पसंद है, कोई डांसिंग में अच्छा है, कोई सिंगिंग में अच्छा है, कोई मतलब बाकी करिकुलर एक्टिविटीज़ में अच्छा है। तो सर इसमें क्या होना चाहिए कि पैशन जो, मतलब सपोज पैशन तो क्योंकि अब बीटेक कर रहे हैं या कोई भी एक फील्ड चूज़ कर लिए तो पैशन अब तो वही बन जाएगा, लेकिन कहीं ना कहीं हॉबीज़ जो होती हैं वो भी बहुत इम्पैक्ट डालती हैं। तो सर इसके लिए फिर क्या होना चाहिए? देखो, लाइफ में कई चीज़ें ऐसी होती हैं जो आपको लाइक यू डू बिकॉज यू वांट टू अर्न योर लाइवलीहुड, दैट्स द रीजन यू हैव टू डू। प्रोफेशन एंड हॉबीज समटाइम्स बोथ आर टू डिफरेंट थिंग्स एंड समटाइम्स बोथ आर two faces of same coin, so it happens। तो डिपेंड करता है, लेकिन मुझे लगता है हॉबीज वगैरह में इसलिए इन्वॉल्व होना चाहिए कि रिलैक्सेशन मिलता है, ओके, यू यूटिलाइज योरसेल्फ, ठीक है, यू कम टू नंबर ऑफ न्यू थिंग्स एंड यू डेवलप योर पर्सनैलिटी। अब जो पर्सनैलिटी होती है, पर्सनैलिटी का मतलब ये नहीं होता कि भाई आपने एक स्किल सीख ली, आपने एजुकेशन फील्ड में अच्छे हो, वही अच्छे हो। और कई बार ऐसा भी होता है कि आपको जो एक नया जिंदगी के कहते हैं नई एज पे नया आयाम मिलता है, तो बहुत ज़रूरी होता है और चीज़ों में इन्वॉल्व रहो। और एक चीज़ मैं हमेशा सजेस्ट करता हूँ, पता नहीं आज की जनरेशन कितना अच्छा लगता है, ओरेटरी स्किल्स को बिल्कुल भी लाइटली ना लो। बाकी जो कर रहे हो वो तो करते ही रहो। आज के टाइम पर ओरेटरी स्किल्स प्ले अ वेरी वेरी क्रूशियल रोल। तो अपनी जितनी डेवलप कर सकते हो, जितना पैशन ला सकते हो, उसको एंजॉय करो। मतलब उसको बर्डन नहीं लो कि मुझे प्लेस होना है, प्लेसमेंट के लिए मुझे चाहिए ओरेटरी स्किल्स इंप्रूव कर लूँ, क्वेश्चन का आंसर रट लूँ, चला जाऊँ, नहीं, उसको नहीं करो, उसको एंजॉय करो। बेनिफिट इतने होंगे बियॉन्ड योर इमेजिनेशन, जितने इमेजिनेशन नहीं। इसमें हो सकता है सर, क्योंकि कई बार ये होता है कि सर टॉपर्स पूरा प्लान के साथ नहीं चलते, बस ये लगता है कि हम तो कर लेंगे, सब प्लान कुछ नहीं होता। पर एक वहीं पास जो होता है, जो एवरेज स्टूडेंट होता है, बस वो एक प्लान अच्छा करके चलता है, तो कहीं ना कहीं वो एडवांटेज, एक उसको एडवांटेज मिल जाता है, कहीं उसको कहीं ना कहीं उसको पे ऑफ मिलता है उस चीज़ का। देखो, स्किल्स तो बहुत अच्छे थे, लेकिन वेरी फ्रैंकली इंटरव्यूअर को स्किल्स सेल आउट ही नहीं कर पाए, इंटरव्यू को कन्विंस ही नहीं कर पाए, तो अल्टीमेट तो उसे ही लेना था कंपनी में। तो आपकी स्किल्स बहुत अच्छी थी, आप उसमें मास्टर थे, बट यू वर नॉट एबल टू सेल इट आउट, तो क्या होगा प्रॉब्लम? अब मैं पॉइंट आउट नहीं करना चाहिए, मैं वेरी स्मॉल मैन, मैं ले 2 लोगों को अलग अलग बात करूंगा। आज हम लोग मोदी जी को लेते हैं, आज हम लोग मनमोहन सिंह जी को लेते हैं। मनमोहन सिंह जी वॉज वेरी हाईली एजुकेटेड, बहुत हाईली एजुकेटेड थे, गवर्नर थे, इकोनॉमिक्स की थी, लेकिन शायद हो सकता है किसी एक फ्रेंड में बहुत छोटा हूँ इस चीज़ को बोलने में, लेकिन हमें देखते हैं कि प्राइम मिनिस्टर क्या करते हैं आज की इस चीज़ पे, कि हम कंट्री को किस आयाम पे पहुंचाया उन्होंने, कहाँ तक पहुंचाया, क्योंकि वो चीज़ों को बता पाए दुनिया को। आपके पास जो चीज़ है अगर वो बता नहीं पा रहे हो, तो फिर वो कई बार स्किल्स प्रॉब्लम क्रिएट कर देती हैं आपकी, अगर उसको बता नहीं पा रहे, तो बहुत ज़रूरी हो जाता है स्पीकिंग स्किल्स, बहुत स्पीकिंग है, और अपने आप को एक्सप्रेस कर पाना, भाई ये चीज़ है ना आपके पास, एक्सपोजर आपके पास है, मैं गाना अच्छा गा लेता हूँ, बैठा हूँ कि ये मेरे से कहें, ये मेरे से कहें, मेरे से कोई नहीं कहने वाला, आई हैव टू टेल द वर्ल्ड, खुद इनिशिएट करना होगा। टाइम चेंज हो चुका है, पहले कहते थे हम अपने मुंह में मिट्टू नहीं बनो, आज की डेट में अपने को बताना है भाई मैं ये है, ये है, ये है। इनडायरेक्ट वे होता है ना सर, जैसे लोग होते हैं ना बहुत ज्यादा ही बोलने लगते हैं कि अरे मैं, मेरे को सब आता है ये तो, और बहुत लोग होते हैं ना इनडायरेक्टली बोलते हैं
तो सर ऐसे कैसे हम लोग अपनी चीज़ों को बताएं कि वो इनडायरेक्ट वे में लगे, ऐसा ना लगे कि हम लोग वी आर फ्लैटरिंग। तो सर इसके लिए क्या अपनी जो भी स्किल्स होती हैं, यू हैव टू टेल द वर्ल्ड दैट यू हैव गॉट दोस स्किल्स। मैं जैसे आपकी जनरेशन से छोटा एग्जाम्पल लेता हूँ, सबके कोई सेलिब्रिटी दिमाग में होते हैं। मैं इनसे पूछूँ कि भाई तुम्हारा फेवरेट सेलिब्रिटी कौन है, बोल देंगे भाई शाहरुख खान है सपोज। इनसे पूछो कौन सा, इन्होंने बोल दिया सपोज अर्जुन रामपाल है। आपसे पूछा, आपने बोल दिया सपोज करीना कपूर है। तो जब इन सेलिब्रिटी को आप रोल मॉडल बनाते हो तो उनसे एक चीज़ और सीख लो। मैं हमेशा कहता भी आता हूँ, क्योंकि फैशन स्टेटमेंट को फॉलो नहीं करो, आप उनके जो कम्युनिकेशन उसको भी तो फॉलो करो। वो देखो कहना आसान है कि शाहरुख खान इज अ गुड एक्टर और बैड एक्टर, लेकिन अभी कभी शाहरुख खान को जाके किसी प्लेटफॉर्म पे सुनोगे तो पता चलेगा इज अ वेरी सेंसिबल मैन। अगर उसकी तरह बोलना ही सीख लोगे तो कहीं भी अपने आप को सेल आउट कर सकते हो, कहीं भी कुछ कर सकते हो। इट हैपन। तो हर एक सिक्के के दो पहलू होते हैं, क्या चाहते हो तुम उससे। तो लोगों से सीखो। जैसे ऑपोजिशन के लीडर है शशि थरूर हैं, पीपल हैव गॉट डिफरेंट परसेप्शन अबाउट दिस मैन, बट आई फाइंड हिम one of the finest speakers of the world at world level. His vocabulary, the way he speaks, he expresses himself, तो मैचलेस है, वो मैच उनका कर ही नहीं सकते। सीखो, उनसे सीखने को भी बहुत कुछ है। मोदी जी से कॉन्फिडेंस सीखो कि भैया प्राइम मिनिस्टर हैं, कॉन्फिडेंस ले लें। बैकग्राउंड आप लोग जैसे कहते हो ना, बैकग्राउंड नहीं, एक बैकग्राउंड से कहाँ तक उस रिस्पॉन्सिबिलिटी को लेना, बहुत कुछ सीखने को है। तो ये एटीट्यूड है आपका कि आप किससे क्या सीखते हो। भाई वो मोदी जी भी कह सकते थे मेरा बैकग्राउंड तो भाई ये है, मैं कैसे रिस्पॉन्सिबिलिटी लूंगा, नहीं, उसको उन्होंने सीखने की चाह वहाँ पे पहुँच गया। तो सबके साथ होता है। तो मेरा तो सजेशन यही रहता है कि जितना अपने आप को अपग्रेड करो, आज के टाइम में बहुत ज़रूरी हो गया है। और आपको इतनी अच्छी गोल्डन अपॉर्चुनिटी मिली है कि लाइक ट्राई टू आस्क योर सीनियर्स, ट्राई टू आस्क द पीपल अराउंड यू, ट्राई टू आस्क योर मेंटोर्स, whomsoever you find, they are ready to help you. कॉलेज हमेशा अपॉर्चुनिटी कॉलेज ने भी दी है, बाकी हम लोग भी दे रहे हैं। आपके दिमाग में कोई क्वेश्चन है पूछो। बहुत सारे कॉलेज हमारे बहुत सारी अपॉर्चुनिटी दे रहे हैं। जैसे अभी मैंने डिस्कस भी किया था कि कोर्सेज अवेलेबल हैं, ऑरेकल, पालो अल्टो और सिस्को एकेडमी से टाई अप है। तो हर कोर्सेज जो अभी कोर्सेज हमारे कॉलेज में आ रहे हैं उन सबको अवेल करिए और अपने आप को अपग्रेड करिए। एक मैम मैंने सुना था हमारे सीनियर है, उन्होंने कुछ काम किया है, आई थिंक स्टार्टअप इलेक्ट्रिकल ब्रांच का हमारा एक स्टूडेंट है हमारे कॉलेज का, उनको उसने एक प्रोजेक्ट बनाया है जिस पर गवर्नमेंट हाइब्रिड ट्रेडमिल स्कूटर नाम का एक प्रोजेक्ट है उसका, और वो गवर्नमेंट के थ्रू पेटेंट हो गया है। तो कुछ ऐसा काम करिए इनोवेटिव हो, डिफरेंट हो थोड़ा, जिससे लगे कि हाँ वी आर वर्किंग और जो कि मार्केट में स्टैंड कर सकते। क्योंकि मेन चीज़ है ये कंपटीशन में अगर हम लोग को खड़े होना है, क्योंकि क्या होता है इतनी सारी कंपनीज हैं, बहुत सारी कंपनीज हैं जो स्टार्ट हो रही हैं अभी एकदम, और बहुत सारी कंपनी जो पीक पे हैं इस टाइम, TCS हो गई, इन्फोसिस हो गई, इनके पास ऐसे इतने सारे लोग हैं और लोग चाहते भी हैं कि उनके साथ काम करें। लेकिन अगर हम लोग कुछ स्टार्ट कर रहे हैं तो हम लोग को एक होता है ना डिफरेंट एक ऑरा होना चाहिए, एक डिफरेंट ऑरा होना चाहिए, एक डिफरेंट थॉट होना चाहिए कि अपनी जो भी है जो भी स्टार्ट कर रहे हैं हम लोग वो चीज़ एकदम डिफरेंट रहे, ताकि लोगों को भी इंस्पायर हो कि हाँ हम इनके साथ काम कर सकते हैं। अपने आप को बहुत इम्पोर्टेंट है, बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंट। अभी देखो ना कितने सारे बिजनेस लीडर्स हैं, चाहे एलन मस्क के बारे में बात करो, मार्क ज़करबर्ग के बारे में बात करो, जिसके बारे में बात करोगे, मुकेश अंबानी की बात में बात करो, रतन टाटा के बारे में बात करो। इफ़ यू ट्राई टू फाइंड आउट व्हाट सॉर्ट ऑफ थॉट प्रोसेस दे हैव गॉट, कैसे सक्सेसफुल हुए, कहीं ना कहीं एटीट्यूड ने बहुत इंपॉर्टेंट रोल प्ले किया है, बहुत इंपॉर्टेंट रोल प्ले किया है। तो अपग्रेड करो, सीखो उनसे, प्रीचिंग नहीं है, दैट्स द रियलिटी। उनके थॉट प्रोसेस को देखो, क्योंकि उन्होंने इस चीज़ को फेस किया है, तो बहुत सारी चीज़ें हमको लोग को सीखने को मिलती हैं। बाकी और क्वेश्चन तुम लोग के दिमाग में कोई भी क्वेश्चन आ रहे हैं, सबसे कि हम लोग क्वेरी को सॉल्व करने की कोशिश कर रहे हैं, इंग्लिश रिलेटेड हो, कोई भी चीज़ें हों। सो हैव यू गॉट एनी क्वेश्चन गाइस? I hope we were able to solve your queries. If you have any question, you can ask us. Now I think that all of three are satisfied now, and I would like to say to the viewers, अगर आपको कोई भी ऐसा क्वेश्चन लगता है, आपको प्रॉब्लम लगती है, प्लीज़ आप कमेंट्स पे शेयर करिए हमसे, और हमारे चैनल को सब्सक्राइब करिए। हमारे एक्सपर्ट्स हैं जो कि आपको ट्राई करेंगे कि आपकी क्वेरीज पे वर्क करें, सॉर्ट आउट करें, एंड no matter whichever college you belong to, we'll try to sort out your query. Exactly. Because it happens whenever you go for job world, recruitment, you have got a number of problems you're not aware of, और आपको hesitation लगता है हम लोग कैसे पूछें।
तो व्यूअर्स हमारे कमेंट बॉक्स में यू गॉट एनी क्वेश्चन रिलेटेड टू HR, रिलेटेड टू टेक्निकल, कि हम लोग उसको क्वेश्चन को कैसे डील कर सकते हैं, आप उसको ज़रूर पूछिए, हम लोग आपकी क्वेरी को सॉल्व करेंगे. So till the time we are signing off, and one more thing I would like to say, we need to stay safe and we need to be happy while feeling stay safe. तो मास्क जरूर पहनिए, मास्क को नहीं छोड़िए, Mask is very तो important. इट्स वेरी इंपॉर्टेंट. तो हम It's the लोग necessity nowadays. So stay safe and healthy. Stay with us. And wear Bye-bye. mask. Thank you. Thank you. बाय, टेक केयर, बाय.